So no, I saw it was a woman that I never see in my life. So this is the first time I get introduced to Lalita. Okay, introduced physically. I didn't see the temples, but this is physically. So I start looking at her and I see her hair, the way she was dressing, and then suddenly I saw how she started becoming closer to Smita, and closer and closer. When she started coming more closer, everybody was in extreme um, ecstasy. I mean, everybody. And I was thinking, oh, thanks God, it's not just me, I'm not bipolar. So I was very excited to see this experience in looking at everybody, how they were. I'm not sure if they would see what I see, I'm not sure, but I know they were feeling something. I know everybody was feeling something. And finally, Lalita came into Smita, and Smita became no Smita anymore. She was a different being, completely a different being. And of course, everybody wants to touch her, and people were around her, and I was thinking that this is no, absolutely not right anyway. Um, so she came to me and she touched me, and when she touched me, I feel like electricity. I mean, it was like, zzz. I was like, no, 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 this is, I mean, nobody touch her, please. It was a different experience. My second experience was Mahesh, what are? Mashwar. Um, that experience was different. Lalita is sweet, loving, beautiful being. She's the mother. She is just flowers. I don't know how to express. She's the mother. So she wants her children around her. So when we were there, we have a experience, and we have to encounter one situation with one of the devotees. So Smita is sitting, I'm sitting right by her side, and then suddenly I start see this woman behind her. This woman is the the color of her skin is black, black purple. It's not like dark black, no, black purple. Her eyes are black, but completely the whole eye is black. And it's strange, but I feel like a little bit like scared because the way she was dressing, it has some different kind of things, like scalps around her. And I was thinking, what is that? I mean, I mean, I never see Kali. I never see Kali. So to me, that was completely a different story. Being Lalita, now Kali, I was thinking, okay, who is this woman? I mean, with all my respect, I was not sure who she was. And then she turned around to me and she said, don't be afraid, my daughter. And I said, oh, okay. So I come down. I was retrieving myself, I was retrieving myself. And suddenly when she said, don't be afraid, my daughter, I stopped. And then she became Kali. Kali was sweet, strong but sweet. She loved me, but don't do anything bad because you will see who I am. She was so beautiful. She was with the children and everything. And when we encounter the situation with that being, she became Kali. She became Kali. She was completely a warrior. Uh, Her eyes were electricity. Her eyes was electricity. Her hands were. She has a big. I mean, I didn't have idea what she has. At that time. Now I am.
checking what is going on. But at that time, she has like a big fork. How do you call that? June. And she was right there. And then when we start working on that person, she was the warrior. And then you don't want to be close to her. I mean, she is unbelievably strong. So that was my experience last year. And from that time on, I've been like, I don't want anybody. I don't want to do nothing else. Uh, I mean, Smita doesn't need this. I don't need this. We have a good life in America. But it's something else. That is something that we have to do. Uh, I have my family, grandkids, my kids and daughter-in-laws and my husband and everybody, okay, I'm leaving, I'm going to India. Oh, good, okay. Everybody thinking 1 month. No, I'm going for 3 months. Excuse me? I was thinking my husband is going to tell me, okay, right here is the paperwork, sign the divorce. But everybody support me. And I know it's because I am under Smita wings. She is my guru. And one thing Kashi is talking and what is Sumita is talking about guru is very important. I mean, I'm learning the presence of guru. I didn't know what is a guru. So I'm learning. I respect my guru. I love her, but that doesn't mean that I love her and I become on top of her. I become loving and give her her space. Respect her with all my heart. So if she wants me in her room, I'll be in her room. If she don't want me in her room and she say, you can go, I go. We have to respect our gurus with all our heart because her energy become Lalita, become Kali, it's not easy. It take away a life of herself. It's not easy what she's doing. Being sitting there for I don't know how many hours right now, I have to get up and walk around because I can't handle it. She's still there, sitting, not going to the bathroom. So she is giving you absolutely her love, her self, her soul. Why? To save you guys. So the only thing that I'm learning right now from Kashi and Smita, my guru, I have to learn how to tell her Guruma, Guruma, Guruguma, Guruguma, and Sumita, is that we need to learn how to respect our gurus. You don't talk to your guru like you are equal. You are not equal to guru. You are down here because you're learning. Guru is up here. She's having the information from Krishna directly. You can think you are the most wonderful thing in the whole world, but she is our guru. So we need to respect our guru with love, compassion, respect. And of course, we have to respect our peers around. We are nobody to tell, oh, you do this. No. We love, can you help me? We have to respect each other because we follow in our guru and our guru is teaching us absolutely everything. So I think I don't want to make you more tired. I'm going to end it up right here. But I love you, all of you guys, and I'm here to help you at the same time to help Smita. So please just follow what she say to the point in comma. Exactly what she say. Answers are from her. Nobody else can tell you the answers. Any questions, go to her. All right? So thank you very much, everybody, and you're welcome. Thank you. Please, thank you very much.
पहले तो I am. इन्होंने शुरू किया बताना कि गुरु माँ से कैसे मिली। 7 साल पहले कैलिफोर्निया में किसी ने उनको बोला सत्संग कहीं किसी से मिलना है, तो ये उनके साथ गई। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा इंडियन के घर आई हैं, हिंदी में बोल रही है, क्या समझ में आएगा मुझे। फिर भी ये बैठी वहाँ पे, तो कुछ तो इनको अलग लगा, ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, फिर ये चली गई। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा इनको बुलाया गया दूसरे सेशन के लिए, तो ये फिर आई और इस बार अपनी माताजी के साथ आई वहाँ पे। तो इनकी माताजी और ये बैठ के उनको सुन रहे थे। वहाँ पे चैतन्य चरितामृत की कथा चल रही थी, है ना। हाँ, तो इनकी माताजी ने इनको बोला कि ये कुछ अलग हैं, हम लोग जैसे साधारण नहीं है, कुछ अलग हैं ये। और इन लोगों को भाषा नहीं समझ में आ रही थी हिंदी, इनको इंग्लिश आती है, इनकी माताजी को इंग्लिश भी नहीं आती। स्पेनिश, योर मॉम ओनली स्पीक स्पेनिश, राइट। उनको सिर्फ स्पेनिश आती है, हिंदी तो बहुत ही दूर की बात है। फिर भी भावना से ये जुड़े, वो जो हिंदी में समझा रही थी इनको फिर भी वो समझ में आया थोड़ा बहुत। फिर तीसरी बार ये फिर गई और चैतन्य चरितामृत ही चल रही थी, और इनको बहुत अजीब लगा कि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, मुझे ये भाषा नहीं आती, फिर भी ये सब कुछ समझ पा रही थी। उसके बाद से ये गुरु माँ के साथ जुड़ी और इन्होंने बोला मैं लीच के जैसे लग गई उनके साथ। वो जहाँ जाती थी मैं साथ साथ में जाती थी। फिर वो जब इंडिया आ रही थी तो ये उनके साथ पहली बार जब इंडिया आई, बोली मुझे कुछ नहीं पता था मंदिर क्या है, क्या होता है, ये जहाँ अपना सर झुकाएं वहाँ मैं भी सर झुका दूँ, ये जिस टेम्पल में घुसे वहाँ मैं भी घुसूँ, ये जो खा रही थी वो मैं भी खा रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर इन्होंने हर साल इनके साथ भारत आना शुरू किया और इन्होंने देखा कि ये जहाँ भी जाती हैं, गुरु माँ जहाँ भी जाती हैं, लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने झुकते हैं। तब इनको समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि जिसको मैं एक साधारण तो नहीं बोलूँगी, मतलब ऐसा व्यक्ति समझ रही हूँ जिसे कुछ कुछ आता है, वो कुछ कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत असाधारण है। तब तक इन्होंने बोला कि मैं अंधे की जैसे चल रही थी उनके साथ, मुझे मालूम नहीं था। फिर ये लोग मथुरा से जा रहे थे मुंबई, और 2 साल पहले की बात है ये, 2 years earlier ना, व्हेन यू आस्क्ड हर टू बिकम योर गुरु, राइट। 2 साल पहले ये मथुरा से मुंबई ट्रेन में जा रही थी और रात को ये लोग रात के बीच में चाय पी रहे थे। वहाँ पर इन्होंने उनको बोला कि क्या आप मेरी गुरु बनेंगी। गुरु का भाव प्रकट होने में 7 साल लगा। तो और व्हाट शी लेफ्ट, जो इन्होंने मुझे आज ही बताया था, समथिंग यू लेफ्ट आउट ओवर देयर वाज दैट गुरु माँ टोल्ड यू टेक योर टाइम। हाँ, तो जब इन्होंने 7 साल बाद उनको बोला कि क्या आप मेरी गुरु बनेंगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, टेक योर टाइम, पेशेंस रखो, टेक योर टाइम, हड़बड़ाकर गुरु नहीं बनाना है। यहाँ से वो उनके साथ जुड़ना शुरू हुई। फिर हर साल भारत आती हैं, जहाँ जहाँ वो जाती हैं, जो जो वो करती हैं, ये सब करती हैं। फिर उन्होंने 2 एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव शेयर किए गुरु माँ के साथ। एक बद्रीनाथ में जब गई थी, है ना, वहाँ पर उन्होंने देखा कि सब लोग तो खूब प्रसाद के लिए मारामारी कर रहे थे, जैसा होता है हमेशा, पर गुरु माँ एक कोने में बैठ के कहीं ध्यान कर रही थी, और वो ध्यान में इतनी गहरी उतर गई कि वो ज़मीन से ऊपर उठ गई। जो हम लोग सुनते हैं कि ऋषि मुनि लोग ध्यान में जब जाते थे तो वो लेविटेट बोलते हैं उसको, धरती से ऊपर उठ जाते थे, हवा में तैरना जिसको हम कहते हैं। तो पहले तो इनको विश्वास नहीं हुआ। फिर ये पास से गई, झुक झुक के देख रही थी कि क्या है, लेटी हैं, है क्या ये। फिर इनको धीरे धीरे से लगा, समझ में आया, बड़ी देर तक इन्होंने ऑब्जर्व किया, पर इन्होंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ आवाज़ नहीं निकाली, चुपचाप वहाँ बैठी रही। वो 3-4 घंटे ध्यान में थी, ये 3-4 घंटे वहाँ चुपचाप बैठी रही उनके बारे में, कुछ नहीं बोली। इन्होंने उनको ज़मीन से ऊपर उठते हुए देखा ध्यान में। फिर दूसरा अनुभव, व्हाट वाज द अदर एक्सपीरियंस, वन वाज लेविटेटिंग, व्हाट वाज ललिता। हाँ हाँ हाँ, ये पिछले साल जब आप लोग के साथ शेयर हुआ था, माथेरन का और ललिता का।
तब पहली बार इनको ललिता माँ दिखी माथेरन में, इन्होंने देखा ललिता माँ को। तो ये हीलिंग करती हैं, आप सबको पता है, एनर्जीज में काम करती हैं ये। तो माँ बैठी थी, गुरु माँ बैठी थी, और जितने भी शिष्य उस समय वहाँ पे थे वो सब इनके बहुत नज़दीक आके, कोई उनको छू रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, जो भी कर रहा है, एकदम भाव में थे सारे शिष्य। और इनको वहाँ पे एक स्त्री दिखी और इनको समझ नहीं आई कि ये कौन है। तो ये थोड़ा नज़दीक, इन्होंने देखा कि वो थोड़ी दूर थी, फिर पास आती गई गुरु माँ के। और वो गुरु माँ के जितना पास आती जा रही हैं, जो भी वहाँ शिष्य लोग बैठे हैं उन सब के भाव उतने बढ़ते जा रहे हैं, वो उतना ज़्यादा भाव में बहते जा रहे हैं। और जब वो एकदम गुरु माँ के नज़दीक आ गई तो आई डोंट नो एक्सटेसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? ecstatic. Everybody lost their हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? mind. Ecstasy को क्या बोलते हैं? भाव में जाना। मतलब इतने अधिक भाव में आप लोग चले गए, जिसके बारे में मैंने सुना था कि आंखें खुली हैं तो खुली रह गई घंटों, बहुत कुछ में जो कुछ भी हुआ। हाँ, जो गए थे आप लोगों को मालूम है। हाँ, मतलब जो भी आप लोगों को जो भी हो रहा था, इन्होंने देखा वो एक्सट्रीम भाव तब हुआ जब वो स्त्री जो थी वो एकदम गुरु माँ के पास आ गई। हाँ हाँ हाँ, तो इन्होंने पहली बार, हाँ, ड्रेस में, हाँ, इंडियन ड्रेस में थी, लाल ड्रेस में थी, बहुत सुंदर थी, फूल वूल थे, सब कुछ इनको दिखा वहाँ पे। इनको पहली बार ललिता माँ वैसे वैसे दिखी। फिर उसके बाद काली के दर्शन हुए इनको जब आप लोग महेश्वर गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने, वही गुरु माँ बैठी हुई थी और इनको दिखा कि एक स्त्री आ रही है, बस इस समय सौम्य वाली नहीं है, ललिता तो बहुत सौम्य और लविंग थी, वो काली रंग में है। तब तक इनको नहीं पता था काली कौन है और क्या वस्त्र हैं उनके। तो इनको सिर्फ ये दिखा कि एक स्त्री आ रही है जो एक काले रंग में है और उतनी सौम्य और विनम्र नहीं दिख रही हैं, और नरमुंड पहना हुआ है। तो ये थोड़ा घबरा गई और ये पीछे हो गई। जब ये थोड़ा सा पीछे होने लगी तो वो काली इनकी तरफ मुड़ी और उन्होंने कहा इनको कि डरो मत मेरी बेटी, माय डॉटर, मेरी बेटी डरो मत। तब ये वहीं पे रुक गई। और काली माँ जब फिर जो भी वहाँ पे जो भी हुआ, उस समय इन्होंने काली माँ का फिर रौद्र रूप देखा। तब तक तो वो उनका सौम्य रूप ही देख रही थी, ऑल्दो ललिता जैसा सौम्य रूप नहीं था, पर वो काली माँ का सौम्य रूप ही था। फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे था, जो भी आप लोगों ने किया था, उस समय इन्होंने उनका रौद्र रूप देखा। तो रौद्र रूप में इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन अभी दी है कि उनकी आँखें जो थीं वो जैसा लग रहा था बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी वो था। और उनके हाथ में जो उनका त्रिशूल है, इनको वो दिखा। और जो थे वहाँ पे आप लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। इन्होंने उन दो देवियों के उन दो स्वरूपों का वहाँ पे इस प्रकार से दर्शन किया। और डिड आई मिस आउट एनीथिंग? नहीं ना? Exactly the same sequence. हाँ हाँ, काली माँ ने ये उनको बोला कि अगर किसी साधक ने कुछ गलत किया तो ये जो रौद्र रूप है ना मेरा, तब प्रकट होगा, मेरा रौद्र रूप प्रकट होगा। ये काली माँ ने इनको बताया है। उसके बाद इन्होंने अपना स्वयं का बताया कि मैं इतने सालों से उनको फॉलो कर रही हूँ, पर जब से मैंने उनको गुरु बना लिया है तब से मैं वो गुरु की मर्यादा मेंटेन करती हूँ। प्रेम का अर्थ केवल पकड़ना नहीं है, प्रेम का अर्थ छोड़ना भी है। आपको गुरु से प्रेम है, गुरु को स्पेस दीजिए। मुझे प्रेम है तो मैं पकड़, कल मतलब हम आपस में यही बात कर रहे थे कमरे में कि ये अभी यहाँ से ऊपर गई 5 मिनट, शायद 5 मिनट इन्होंने रेस्ट किया होगा, लोग मिलने के लिए आ गए। और मैं 3-4 बार निकल के, गौरव बाहर खड़े थे, मैंने गौरव को पूछा कि हो गया उनका, क्योंकि हमें लग रहा था यहाँ बैठे 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 ऊपर गई, वहाँ भी ऐसे ही बैठी हुई हैं 6:30 बजे तक, शाम के 6:30 बजे तक वो लोगों से मिल रही थी, है ना? 1 to 1, हाँ ओके, बट उनको तो रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला ना। देख लिया, फिर हमने 8 से 9 फिर यहाँ, हाँ, फिर यहाँ आई, हाँ, क्लास लिया। फिर ऊपर गई, फिर वही कंटिन्यू होगा। हम ये प्रेम में करते हैं, जो ये बोल रही थी कि हमको लगता है कि हमारा प्रेम है, पर प्रेम में आप दूसरे की तकलीफ, वो भले ही तकलीफ नहीं भी उसको हो रही है, मुझे अनुभव होना चाहिए ना।
मुझे आपसे प्रेम है, मुझे दिखना चाहिए कि अभी आपको ब्रेक की ज़रूरत है। मैं यहाँ जब बैठी तो मेरे मुंह से निकलने वाला था कि आप लोग कब से सुन रहे हैं, थोड़ा उठक बैठक कर लेते हैं। क्योंकि मुझे ये दिखा कि भाई आप लोग सुबह से बैठ के सुन ही रहे हैं, हम लोग बोले जा रहे हैं तीनों और आप लोग सुन रहे हैं, शायद टायर्ड हो रहे होंगे, थोड़ा मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा। जबकि मैं आप में से किसी को नहीं जानती। तो वो जो इन्होंने बोला, जहाँ इन्होंने एंड किया, जो गुरु माँ ने भी बोला, प्रेम का अर्थ केवल पाना और पकड़ना नहीं है। प्रेम का अर्थ लेटिंग गो भी है। लेटिंग गो मतलब ये नहीं कि एकदम छोड़ देना है, पर संभल के ज़रा। और जो इन्होंने मर्यादा की बात करी कि वो बाउंड्री अपनी मेंटेन करनी है। नाउ शी हैज़ बिन टेलिंग मी, मुझे 2 दिन से ही कह रही, क्योंकि मैं अब उनको गुरु माँ बोलती हूँ। जब हम दोनों अकेले होते हैं, मैं शायद तब स्मिता बोलती होंगी, रिंकी तो मैंने बोलना एकदम बंद कर दिया है अब, मैंने, मेरे मुंह से नहीं निकलता अब रिंकी उनके लिए। पर जब सबके तो छोड़िए, हम 3-4 लोग भी अगर हैं, मैं उनको गुरु माँ ही बोलूँगी। और मुझे कल ये बोल रही थी कि अब आपको देख के, मुझे कह रही थी कि आपको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे भी अब स्मिता नहीं बोलना चाहिए, मुझे गुरु माँ बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब उनके शिष्य हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग शिष्य नहीं, सब उनके शिष्य हैं। वो गुरु हैं, वो अप्रोचेबल हैं। ये हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमको गुरु ऐसा मिला है जो अप्रोचेबल है। पर हमको अपनी मर्यादा मेंटेन करके रखनी चाहिए। आई थिंक आई ट्रांसलेटेड एवरीथिंग। बहुत हो गया तुम लोगों का क्लास आज।